اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل یعنی جمعرات کے دن رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے، تو آئندہ کل کے بیان کا بہت اہم عنوان رہے گا، اٹھو مومنو مسجدیں بلاتی ہیں۔ اٹھو مومنو مسجدیں بلاتی ہیں۔ مسجدوں کی آبادی وقت کی اہم ضرورت ہے، اور بابری مسجد سے لے کر مسجد اقصی تک ان تمام مسجدوں پر انشاءاللہ ضروری باتیں ہوں گی، اور مسجدوں کو، غیر آباد مسجدوں کو آباد کرنا کتنا ضروری ہے، اس پر بہت اہم بات ہوگی۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئندہ کل کا یہ بیان آپ نے ضرور سننا، تاکہ بابری مسجد کی یادیں آپ اور آپ کی نسلیں بھول نہ پائیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر غزہ فلسطین کے اور حماس مجاہدین اور آتنکوادی اسرائیلیوں کی جنگ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل اس جنگ کو 2 ماہ مکمل ہو گئے، لیکن گزشتہ کل کی خبریں ہیں کہ غزہ میں چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر ہی ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ رات جنوبی غزہ پر پھر اسرائیلی آتنکوادی بمباری ہوئی ہے۔ فاسفورس بم جو جنگی اصول اور جنگی قوانین کے بھی خلاف ہے، فاسفورس بم کا بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے آزادانہ استعمال کیا۔ درجنوں فلسطینی بے قصور عام شہری، سول سٹیزنز اور معصوم بچے بھی شہید ہوئے ہیں۔ منگل کو فلسطین اسرائیل جنگ کو 60 دن مکمل ہوئے۔ ان 60 دنوں میں اسرائیل نے غزہ میں قیامت برپا کر دی۔ پورا غزہ لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہے، زخمیوں کی آہوں سے آسمان لرز رہا ہے، لیکن اسرائیل کے تمام ظلم و بربریت کے باوجود فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے والی مجاہدین کی تنظیمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ مجاہدین راہ فرار اختیار نہیں کر رہے ہیں، بھاگ نہیں رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو شہادت ہمارا مقدر یا تو مسجد اقصی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی اسپیشل فورسز کے لیے کئی گھات لگا کر حملے کیے، جس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی آتنکوادی الحمدللہ جہنم میں پہنچ چکے ہیں، اور کئی اسرائیلی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ مجاہدین سے لڑائی میں شکست کھا کر طرح طرح کے اسرائیلی فوج طرح طرح کے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ اب خبر ہے کہ حماس کی سرنگوں میں
पानी छोड़कर और बिजली का करंट चलाकर उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर किया जाएगा ताकि हमास का खात्मा मुमकिन हो सके। उधर फलस्तीनी सहाफ़ी रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनुस में सुबह से मुजाहिदीन की जबरदस्त झड़पें जारी रही और मुजाहिदीन ने भी कई इजराइलियों को अल्हम्दुलिल्लाह जहन्नम में पहुंचाने का काम किया। खबरें हैं कि बैतलहम और शिमाली रामल्ला में मुजाहिदीन और इजरायली आतंकवादियों के दरमियान घमसान की झड़प हुई, जंग हुई। 24 टैंक, बुलडोजर और फौजी गाड़ियों को मुजाहिदीन ने तबाह कर दिया और इजरायलियों के 4 अफसरान समेत 10 से ज्यादा इजरायली फौजियों के मरने की और जहन्नम में पहुंचने की खबरें आ रही हैं। एक बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त कनाडा से आ रही है, जहां इस्लामोफोबिया और मुसलमानों से नफरत का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। और अभी खबरें आ रही है कनाडा की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा पर, मुस्लिम स्टूडेंट्स पर हमला किया गया। और कनाडा के सूबे ओंटारियो में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में मुसलमान तलबा पर मुबैना तौर पर थूकने पर एक शख्स के ऊपर हमला करने के 2 इल्जामात आयद कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के स्पेशल कांस्टेबल सर्विस ने 2 वाक़यात की इत्तला रिपोर्ट होने के बाद एक आदमी को गिरफ्तार किया, जिस पर पहले ही यूनिवर्सिटी में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। यह वाज़ेह नहीं किया गया कि क्या मुलजिम यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म था जिसे अभी अदालत में पेश किया जाना है। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन MSA की जानिब से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई एक पोस्ट में कहा गया कि हम बार बार जुर्म का इर्तिकाब करने वाले मुजरिम के इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं और इसी अमल के दौरान ताआवुन के लिए वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और कैंपस पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। एसोसिएशन का मजीद कहना था कि यहाँ इस बात को तस्लीम करने की जरूरत है कि ये एक अलग वाक़या मगरिब में जारी इस्लामोफोबिया और मुसलमानों से नफरत के वसी मसले का मजहर है। हम ये बात मानते हैं कि इम्तियाजी सलूक के बुनियादी वजूहात का मुकाबला करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी बड़ी खबर इस वक्त फलस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर आ रही है। हमास और आतंकवादी इजराइलियों की जंग को लेकर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ये इंकशाफ हुआ है और ये रिपोर्ट सामने आई है कि इजराइल का जो एक जौहरी मिसाइल अड्डा था, इजराइल का एक जौहरी मिसाइल अड्डा था, वो हमास के रॉकेट हमलों के जद में आ गया। फलस्तीनी मुजाहमती मुजाहिदीन हमास की जानिब से 7 अक्टूबर को किए गए रॉकेट हमलों में इजराइल का एक ऐसा हसास फौजी अड्डा भी निशाने की जद पर रहा जहां जौहरी मिसाइल लॉन्च करने की फौजी सहूलत मौजूद थी। सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीर ने भी हमास रॉकेट हमलों से इस जौहरी मिसाइलों से लेस फौजी अड्डे पर आग के भड़कने के मनाजिर देखे हैं। ताहम ये आग अड्डे से मुत्तसिल खुश्क घनी झाड़ियों और पौधों में रॉकेटों की वजह से लगी थी। खैर, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट इंकशाफ करता है कि इजराइल का जो जौहरी मिसाइल अड्डा था, जो बड़ा हसास, बड़ा कीमती जौहरी अड्डा था इजराइल का, वो भी हमास के रॉकेट हमलों का शिकार और निशाना बन गया। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की हुक्मरान तालिबान और चाइना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, चाइना ने यह बयान दिया है कि अफगान तालिबान को मुकम्मल सफारती ताल्लुकात से पहले इस्लाहात करना होंगी। चीन ने कहा है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को मुकम्मल सफारती ताल्लुकात हासिल करने से पहले सियासत में इस्लाहात मुतारिफ करवाने, सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर करने और हमसाया मुल्क से
ताल्लुकात ठीक करने की जरूरत है। खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक बेजिंग ने बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है, हालांकि दोनों ममालिक एक दूसरे के सफीरों की मेजबानी करते हैं और सफारती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान वांग वेन ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चीन हमेशा ये समझता है कि अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी बिरादरी से खारिज नहीं करना चाहिए। उनका मजीद ये भी कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी के तवक्कुआत पर मजीद पूरा उतरते हुए एक खुले और जामे सियासी ढांचे को तश्कील देगा और एतदाल पसंद और मुस्तहकम मुल्की और खारिजा पॉलिसी नाफिज करेगा। मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2021 जब से अमेरिका वहां से अफगानिस्तान से निकला और तालिबान की हुक्मरानी आई, उस वक्त से लेकर आज तक तालिबान की हुकूमत को किसी भी मुल्क ने सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया, मगर काबुल और बेजिंग ने कुछ ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। आखिरी खबर भी गज्जा के हालात को लेकर ही आ रही है। जी हाँ, आलमी रेड क्रॉस का एक बड़ा बयान गज्जा को लेकर यह आया है कि गज्जा की फिलहाल अभी की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है, नाकाबिले बयान है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के सदर का कहना है कि गज्जा की सूरत हाल अभी बड़ी बुरी है। उन्होंने गज्जा के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गज्जा की सूरत हाल आलमी बिरादरी की अखलाकी नाकामी है। उन्होंने कहा कि गज्जा में बच्चे ज्यादा मारे गए हैं और बच्चे ही ज्यादा जख्मी हैं जिनके वालिदैन मर चुके हैं। जख्मी बच्चों की मरहम पट्टी और दिलासा देने वाला भी कोई नहीं। गज्जा के जख्मों का मदावा चंद ट्रक भेजने से नहीं होगा। यानी आलमी रेड क्रॉस ने कहा कि ये पूरी दुनिया की अखलाकी मौत है कि पूरी दुनिया गज्जा में होने वाले जुल्म पर खामोश रही और इजराइल को रोकने में नाकाम रही। सदर का यह भी कहना है कि गज्जा में खवातीन, बूढ़े और बच्चे बार बार अपना घर छोड़ने पर मजबूर है। गज्जा में लोगों को चंद दिनों में कई बार अपना ठिकाना छोड़ना पड़ता है। और अमेरिकी एहलकार तो ये कह रहे हैं कि गज्जा में इजराइली हमलों की हवलनाकी से हम खुद हैरान हैं। यानी इजराइल ने आलमी जंगी कवानीन को तोड़ा है और इतनी बेदर्दी के साथ फास्फोर्स बमों का इस्तेमाल किया है जो इंसानी आम सिविल सिटीजन्स की जानों के लिए खतरा बन गए हैं। तो अमेरिकी एहलकार कह रहे हैं कि गज्जा में इजरायली हमलों की जो तबाही है उस तबाही को देखकर हम खुद हैरान हैं।